Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we will study meiosis and how we can study it in lab, यानी कि हम इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज meiosis. Meiosis the basis of sexual reproduction. Sexual reproduction requires a genetic contribution from two different sex cells. अब वो सेक्स सेल्स कौन कौन से हैं? These are egg and sperm cells are specialized sex cells called gametes. In animals, a male gamete unites with a female gamete, that is sperm unites with egg during fertilization to form a single cell called a zygote. एग और स्पर्म मिलके जाइगोट बनाते हैं. द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सिनगेमी. द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू एनिमल. ईच ऑफ द टू गैमेट्स contributes half of the genetic information to the zygote, क्योंकि आधी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्पर्म से आती है और आधी एग से आती है. सो दोनों पेरेंट 50-50 कंट्रीब्यूशन करते हैं. Meiosis begins after the G2 phase in cell cycle after DNA replication. G2 फेज क्या है, S फेज क्या है, G1 फेज क्या है, वो हम माइटोसिस की स्टडी में पहले ही स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं. Two successive nuclear divisions designated meiosis 1 and meiosis 2 takes place. meiosis जो है वो दो पार्ट पे मुश्तमिल होती है. मियोसिस 1 के एंड पे दो डॉटर सेल बनते हैं और फिर वो दो डॉटर सेल फर्दर डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बना देते हैं. द टू न्यूक्लियर डिविजन्स ऑफ मियोसिस रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल्स, ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल. और पेरेंट सेल से हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, जबकि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो पेरेंट सेल के इक्वल होता है. मोर ओवर दीज डॉटर सेल्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल. Like mitosis is a continuous process and biologists divide it into the phases that follow only for convenience. ये नहीं है कि एक फेज होती है फिर रुक जाती है फिर अगली फेज आती है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इवेंट्स ड्यूरिंग मियोसिस. मियोसिस के दौरान जो है वो डिफरेंट फेजेस कौन कौन सी हैं? प्रोफेज 1, क्रोमेटिन फोल्ड एंड क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, जो आम माइक्रोस्कोप आपकी लैब में भी मौजूद है. ड्यूरिंग प्रोफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप साइड बाय साइड इन अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस, forming a tetrad of chromatids also known as bivalent. उसको bivalent भी कहा जाता है. Synapse initiate a series of events known as crossing over, whereby the non-sister chromatids of the two homologous chromosomes in a tetrad exchange DNA segments. This process effectively redistributed genetic information among the paired homologous chromosomes and produces new combinations of genes on the various chromatids in the homologous pairs. homologous chromosome जो हैं वो अपने chromatids के कुछ पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिसके नतीजे में जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होने का ज़्यादा चांस होता है. Thus, each chromatid ends up with new combinations of instructions for a variety of traits. Crossing over
is a form of genetic recombination and is a major source of genetic variation in a population of a given species. इन मेटाफेज वन कौन कौन से इवेंट होते हैं? द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अ स्पिंडल apparatus just as in mitosis. Anaphase 1 begins when homologous chromosomes separate and begin to move towards each pole. Because the orientation of each pair of homologous chromosomes in the center of the cell is random, the specific chromosomes that each pole receives from each pair of homologous are also random. Randomly movement होती है chromosomes की. Telophase 1 is similar to mitotic telophase. The transition to the second nuclear division is called interkinesis. यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होने के दरमियान की जो स्टेज है उसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है. Cells proceeding through interkinesis do not replicate their DNA. अब सेल्स दोबारा से अपना DNA रेप्लिकेट नहीं करते. After a varying time period, meiosis 2 occurs. कि कुछ टाइम के बाद meiosis 2 स्टार्ट हो जाती है. Here you can see meiosis 1. क्या हुआ है? प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो गए हैं. मेटाफेज 1 में क्या हुआ है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में स्पिंडल फाइबर के ऊपर उनकी अरेंजमेंट शुरू हो गई है और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी आपको नजर आ रहा है. साइनेप्स का प्रोसेस नजर आ रहा है. और उसके बाद क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद अगली स्टेज आती है एनाफेज 1, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. टीलोफेज 1 में क्या होता है कि 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन अगेन हो जाती है. एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं उनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है. जैसे 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, 3 एंड 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. ये दरमियान में जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर. और क्रॉसिंग ओवर के दरमियान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं. यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम में एक अपना कुछ पार्ट दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है. जो इनके दरमियान बॉन्डिंग बनती है या जिस वक्त चेंजिंग स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं क्याज्मा या क्याजमेटा. और जब पार्ट एक्सचेंज हो जाता है उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. ये देखें, इस जो क्रोमोसोम का कुछ क्रोमेटिड है वो इस क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो गया है. द सेकेंड मियोटिक डिवीजन. अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या? द सेकेंड मियोटिक डिवीजन meiosis 2 resembles an ordinary mitotic division, except the number of chromosomes has been reduced by half. The phases are prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. At the end of telophase 2 and cytokinesis, the final product of these two divisions of meiosis are 4 new division products. In most animals, each of these division product is haploid and may function directly as gamete या सेक्स सेल के तौर पे काम कर सकती है. यहाँ पे आप देख रहे हैं meiosis 2, prophase 2, metaphase 2. This is just like mitosis.
एनाफेज 2, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए। टीलोफेज 2 एंड उसके बाद डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई है, जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो पेरेंट सेल से हाफ रह गया। स्टडी ऑफ मियोसिस इन लैब, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ये मियोसिस या जो मियोटिक सेल साइकिल है वो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट में भी शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस और मियोसिस आपकी थ्योरी में भी सेल डिवीजन के नाम से इंक्लूडेड है। हमने ये उसकी स्टडी प्रैक्टिकल में साथ कर ली है, हम ये लेक्चर अलहदा से नहीं डिलीवर करेंगे, ये दोनों ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। तो आप वहाँ से इसकी थ्योरी भी प्रिपेयर कर लीजिए और साथ प्रैक्टिकल का प्रोसीजर भी प्रिपेयर करके उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मियोसिस की स्टडी हम लैब में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें या तो डोमेस्टिक फाउल के टेस्टीज या ग्रास होपर के टेस्टीज चाहिए होते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। कि आपने क्या करना है, सबसे पहले टेक अ ग्रास होपर, डाइसेक्ट इट एंड एक्सपोज इट्स टेस्टीज। उसके बाद क्या करना है, पुट 2 to 3 ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टीज ऑन ग्लास स्लाइड, स्लाइड पे रखनी है, उसके ऊपर वाटर डालना है और उसको मटेरियल को मैश करना है। किस तरह से मैश करना है, विद द हेड ऑफ कॉमन पिन, कॉमन पिन के हेड के साथ मैश करना है जेंटली। अब इसके ऊपर आपने स्टेन डालना है, ओसीटो ऑरेसिन स्टेन। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर रख देनी है कवर स्लिप और जो एक्सेसिव स्टेन है वो आपने फिल्टर पेपर के साथ रिमूव कर देना है। आपने स्लाइड को थोड़ा सा वार्म करना है या गर्म करना है, कैसे कि आपने जलते हुए बर्नर के ऊपर से जस्ट पास कर देना है, वो वाली साइड नहीं जिधर आपने मटेरियल लगाया हुआ है और कवर से लगाई है, बल्कि उसकी ऑपोजिट साइड को जस्ट पास करना है। उससे क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगी, ऊपर मटेरियल जो है वो फिक्स हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। Gently press the cover slip with thumb to spread the tissue, उस मटेरियल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है साइड के ऊपर। Remove excessive stain with filter paper and observe the slide under compound microscope, और माइक्रोस्कोप के नीचे फिर आप मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं मियोसिस की वो देख सकते हैं। इसके लिए आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा आपको माइटोसिस की स्टडी के लिए चाहिए, सिवाय एक दो चीज़ों के कि जो आप को इसमें चेंज करनी है, जो जिनकी आपको वहाँ ज़रूरत। मटेरियल्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो है सीटोरिसिन स्टीन, बर्नर, वाटर, कवर स्लिप, फिल्टर पेपर, वॉच ग्लास, स्लाइड्स, फोर्सेप्स, माइक्रोस्कोप, नीडल, ड्रॉपर एंड ब्लेड फॉर डाइसेक्शन। आपने डाइसेक्ट कैसे करना है मेल ग्रास होपर को, और ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये मेल ग्रास होपर है। रिमेंबर, मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स इन grasshoppers. Spermatozoa divide rapidly from November to April, के नवंबर से अप्रैल के मंथ में ये एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वॉश हैंड्स एंड पुट ऑन ग्लव्स, डाइसेक्ट इट इन इंसेक्ट सलाइन सोल्यूशन आफ्टर क्लोरोफॉर्म, तो पहले उसको बेहोश कर लेना है, फिर उसको इंसेक्ट सलाइन सोल्यूशन के अंदर डाइसेक्शन करनी है ताकि उसके बॉडी पार्ट ड्राई ना हो जाए। गिव वर्टिकल कट ऑन सेगमेंट नंबर 5 to 6, आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमेन के भी सेगमेंट होते हैं। टू लोकेट टेस्टीज,
द कलर ऑफ टेस्टिस इज ऑरेंज येलो, लीव द वाइट ट्यूब्यूल, जिसके अंदर वाइट ट्यूब्यूल्स होते हैं। टेस्टिस में बी प्रिजर्व इन अ फिक्सेटिव फॉर 1 ईयर, उनको अगर आपने डाइसेक्शन करके उसी वक्त नहीं यूज करना तो आप उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। इंसेक्ट सलाइन सोल्यूशन आपने कैसे बनाना है, 7.5 ग्राम NaCl जो नमक होता है वो, और उसको 1 लीटर वाटर में डिजोल्व कर लेना है, तो आपके पास इंसेक्ट सलाइन सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। यानी कि इसमें डाइसेक्शन करने से ग्रास ऊपर के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ड्राई नहीं होंगे। फिक्सेटिव अगर आपने डाइसेक्शन करके उसी वक्त स्टडी नहीं करना, फिक्सेटिव यूज करके उसको प्रिजर्व करना है, तो क्या करना है, ऐड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 25 ml इन 75 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, और उसमें आप 1 ईयर के लिए इस सोल्यूशन में, इस मिक्सचर में ग्रास ऊपर के टेस्टिस प्रिजर्व। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसको आपने प्रिपेयर भी करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डायग्राम भी बनानी है और प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना भी है, ठीक है। उसमें पहले आपका आ जाएगा टू डिमॉन्स्ट्रेट मियोसिस इन ग्रासहॉपर टेस्टिस, उसके बाद आप लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड जो मैंने आपको बता दिए हैं, फिर आप प्रोसीजर लिखेंगे, एंड याद रखिएगा प्रोसीजर आप पास्ट टेंस में लिखेंगे, और उसके बाद आप रिजल्ट लिखेंगे कि आपको कौन सी स्टेज माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आई है, जबकि जो ब्लैंक पेज है जिस स्टेज का आप जिक्र करेंगे रिजल्ट में कि आपको ये स्टेज नजर आई है, वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वही स्टेज या स्टेजेस आपने ब्लैंक पेज पे ड्रॉ भी करनी है। थैंक यू वेरी मच।